Welcome to Tathastu Institute of Civil Services. The topic for today's discussion is space junk or space debris. In this topic, these are the different things that we are going to study. We'll first understand the basics of space debris, कि space debris होता क्या है, what are the different causes, and what are the negative impacts that the space debris is going to give to humans. एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे टॉपिक का, हमारे डिस्कशन का, कि स्पेस डेब्रिस को हम कैसे कम कर सकते हैं, हाउ वी कैन रिड्यूस और मिटिगेट स्पेस डेब्रिस. एंड एज यूजुअल ऑलवेज वी हैव ब्रॉट यू अ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑल्सो. विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस सिंपली स्टार्ट विद व्हाट इज स्पेस डेब्रिस और व्हाट इज स्पेस जंक. नाम से ही आप समझ गए होंगे कि स्पेस जंक है, यानी स्पेस में कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा मैन मेड पार्टिकल, मैन मेड ऑब्जेक्ट जो किसी काम का नहीं है, अब वो ह्यूमन के लिए यूजलेस हो गया है, इररेलेवेंट हो गया है. इट हैज कंप्लीटली बिकम ऑब्सोलीट फॉर ह्यूमन यूज. सच ऑब्जेक्ट्स, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज स्पेस जंक और स्पेस डेब्रिस. नेचुरल यूजलेस ऑब्जेक्ट्स नहीं, आर्टिफिशियल यूजलेस ऑब्जेक्ट्स को ही हम स्पेस जंक बोलते हैं. सो नॉन फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन अर्थ ऑर्बिट. फॉर एग्जाम्पल वी हैव डिफंक्ट सैटेलाइट्स जो खराब हो गई है, मैलफंक्शन हो गई हैं, और विच हैव एक्सपायर्ड एंड देयर यूज इज ऑलरेडी ओवर. दे आर नो लॉन्गर, देयर मिशन इज ऑलरेडी ओवर. स्पेंट रॉकेट स्टेजेस, अलग अलग रॉकेट फ्यूल जो रॉकेट फ्यूल जो अलग अलग स्टेजेस में बटे होते हैं, एक के बाद एक वो गिरते जाते हैं एयर में, स्काई में, एटमॉस्फेयर में, तो वो सब स्पेस में तैरते रहते हैं. And fragments from collisions, because of some activities there will be collisions between two satellites, between two asteroids, or between asteroids and satellites. All these will result in fragments. So all such things, all such objects, man-made objects which are of no use for humans, are considered as space debris. So this is one of the pictures that when the space program had started worldwide, globally, you can see that there were very less satellites, but as the technology advanced and many countries started to came into space field, you could see the entire earth was filled with satellites. And by 2030 it is predicted that no longer any more satellite would be able to launch, because there is no space in the outer space in the universe to keep our satellite in the orbits. Some relevant data that can help you in your mains examination is कि in the whole universe that humans have launched different satellites, how many total number of particles are there, how many total number of objects are there which are considered as space junk. Space junk total कितने हैं? वो 100 मिलियन से ऊपर हैं. 100 मिलियन का मतलब है 10 करोड़. 10 करोड़ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं स्पेस में जो बिल्कुल यूजलेस हैं. लेकिन हाउ मेनी ऑफ देम आर वी एबल टू ट्रैक? वी आर ओनली एबल टू ट्रैक अबाउट 36,000. 10 करोड़ में से सिर्फ 36,000 ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रैक कर पा रहे हैं. एक किसी भी ऑन एन एवरेज किसी भी स्पेस जंक जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर, 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कोई भी स्पेस जंक मूव करता है. कोई छोटा सा भी अगर ऑब्जेक्ट होगा, इतनी स्पीड से वो हाईली डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा. इसका बेस्ट एग्जांपल है दैट इन 2019 इरिडियम 33 एंड कॉस्मोस 2251 कोलाइडेड. इरिडियम 33 वाज अ यूएस सैटेलाइट एंड कॉस्मोस 2251 वाज अ रशियन सैटेलाइट. रशियन सैटेलाइट में कुछ डिफेक्ट आया, बिकॉज ऑफ विच इट गॉट कोलाइडेड विथ इरिडियम 33 यूएस सैटेलाइट. दोनों सैटेलाइट्स खराब हो गई, दोनों सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो गई, एंड इट रिजल्टेड further in 23,000 pieces of debris. So this is one example which can help you to understand that how space debris is bad for humans as well as for the space itself. This is another data for you which we have brought from NASA, which is as of 2022, in which we are trying to understand which country is responsible for contributing most to space debris. So by this data we can see as of 2022, Russia followed by US and followed by China are the maximum contributors in the space debris. This doesn't mean that they are launching many satellites, but this surely means that even if they launch satellites, the satellites are resulting in space debris. Now
व्हाट आर द नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ स्पेस डेब्रिस? स्पेस डेब्रिस से दिक्कतें क्या है, नुकसान क्या आता है? सबसे पहला नुकसान, जैसे आप लोग समझ ही गए होंगे, कि जो एग्जिस्टिंग सैटेलाइट्स हैं, जो आपको वेदर प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती हैं, जो अर्थ को ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है, जो आपकी स्पाई सैटेलाइट्स है, आपकी एनिमी कंट्री पे नजर रखने के लिए काम आती हैं, जो आपको सुनामी की वार्निंग देगी, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करने में हेल्प कर रही है, ये सारी सैटेलाइट्स को थ्रेट होगा इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन ऑन जीपीएस एंड वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स। फिर जो हम इंडिया भी भारतीय अंतरिक्ष मिशन लॉन्च कर रहा है, या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च कर रहा है by 2035, in which humans, Indians will be going to the space and conducting experiments there. वैसे ही एक गगनयान मिशन ऑलरेडी इंडिया रेडी हो गया है लॉन्च करने के लिए। गगनयान मिशन में भी some Indian pilots will be sent to space for conducting experiments and will be there for 3 to 4 days. Similarly, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऑलरेडी बहुत से साइंटिस्ट पहले से एग्जिस्ट करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो अभी तक 400 किलोमीटर की हाइट पे अभी भी है, वहां पे 400 किलोमीटर की हाइट पे साइंटिस्ट जाते हैं, सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है और वहां पे रहते हैं, वहां पे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं। नाउ इफ देयर इज अ स्पेस डेब्रिस व्हिच इज गोइंग टू कोलाइड विद सच मिशंस, द ह्यूमन लाइफ इज एट डेंजर। तो इट इज वेरी रिस्की फॉर ह्यूमन और क्रूड स्पेस मिशंस। मूविंग अहेड विद कैस्केडिंग इफेक्ट, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले जब हमने आपको एग्जांपल दिखाया दैट when two satellites collided, it further resulted in 2300 pieces of debris. Then one of these pieces, if only one of these pieces collides with another satellite, it will further result in many more debris. Just imagine 2300 pieces further colliding with other satellites. So one collision will result in many debris. Each debris is going to result in a chain reaction. So this chain reaction is known as cascading effect, and we have a scientific name for it, and you need to remember this name for examination point of view. इसको बोलते हैं Kessler's syndrome. Kessler syndrome का मतलब है एक जंक और कहीं सारे जंक को पैदा करता रहेगा, chain reaction. Last is obviously the economic effect, economic impact की सैटेलाइट को बनाने में, लॉन्च करने में बहुत सारा खर्चा आता है, करोड़ों रुपए में खर्चा आता है। अगर कोई किसी और की सैटेलाइट या किसी और का जंक आपकी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दे तो सारा का सारा वो पैसा जो है वेस्ट हो गया, प्लस उसकी एप्लीकेशन भी वेस्ट हो गई। सो देयर इज एन इकोनॉमिक बर्डन ऑन द कंट्री बिकॉज ऑफ स्पेस जंक। सो दीज आर द डिफरेंट इंपैक्ट्स दैट स्पेस डेब्रिस और स्पेस जंक हैव। द लास्ट थिंग फॉर आवर डिस्कशन इज कि इस स्पेस जंक को हम कम कैसे कर सकते हैं। तो इसरो का एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं नेत्र, प्रोजेक्ट नेत्र। नेत्र का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। नेटवर्क, किस चीज का नेटवर्क? स्पेस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने का और उनको एनालाइज करने का, स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। इन दिस व्हाट वी डू इज दिस एक्ट्स एज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम कि अगर हमारी सैटेलाइट्स के आमने सामने, हमारे सैटेलाइट्स के पाथ पर कोई स्पेस ऑब्जेक्ट आ गया है, डेब्रिस आ गया है जो कोलाइड करने वाला है, तो ये पहले ही वार्न कर देगा नेत्र। सिमिलरली इंडिया में एक प्राइवेट कंपनी है दिगांतर, बैंगलोर बेस्ड एक प्राइवेट कंपनी है, जिन्होंने उत्तराखंड में, उत्तरांचल में इंडिया फर्स्ट प्राइवेट स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी बनाया है, SSA ऑब्जर्वेटरी बनाया है, अंडर विच it is able to using lidar light detection and range technology, lidar टेक्नोलॉजी को यूज करके वो ग्राउंड से ही ऊपर बता सकते हैं कि हमारी कौन सी सैटेलाइट के पाथ में कोई स्पेस डेब्रिस है या नहीं, और अगर है तो उससे कैसे बचा जा सकता है। देन इन 2022 इसरो ऑल्सो लॉन्च्ड ISO4M, जिसमें हम बोलते हैं इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट। IS4M में हम ये समझते हैं कि
कोई भी सैटेलाइट जब हम लॉन्च कर रहे हैं, इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच. दैट मीन्स फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड ऑफ द मिशन, from start to the end of the mission, the payload, the satellite that is going to be deployed in the space should be secured from the start of its mission, and even after the mission has been ended, still it is secure and it does not pose any threat to anything else. So ensuring safety of space assets and continued use of outer space for national development. उसके लिए क्या बनाया है? IS-4OM. Then latest in 2024 में इसरो रिलीज्ड अ रिपोर्ट. रिपोर्ट का नाम क्या है? इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट. इंडियन स्पेस सिचुएशन असेसमेंट रिपोर्ट, जिसमें इन दिस रिपोर्ट इसरो सेड दैट about 3100 ऑब्जेक्ट्स वर प्लेस्ड इन द स्पेस ग्लोबली. पूरी दुनिया ने 2023 में कुछ 3100 ऑब्जेक्ट स्पेस में डाले. आउट ऑफ विच इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? India contributed 5 Indian satellites, 46 foreign satellites and 8 rocket bodies जो spent fuel stages होते हैं. तो इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है 46 plus 5 is 51 plus 8 59, कुछ 60 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 3100 ऑब्जेक्ट्स. तो इंडिया कंट्रीब्यूशन काफी कम है. देन वी ऑल्सो हैव कि जो सैटेलाइट्स ऑलरेडी ऊपर पहुंच गई हैं उनको कम कैसे किया जाए. वो डेब्रिस बन गई है, तो अब उनको डेब्रिस बनने से कैसे रोकें? तो एक अच्छा तरीका यह होता है जो सैटेलाइट घूम रही है, जो सैटेलाइट ऑलरेडी अर्थ के अराउंड घूम रही है, अर्थ के अराउंड मूव कर रही है, इसी सैटेलाइट में अगर हम एक्स्ट्रा वेलोसिटी दे दें, अगर हम एक्स्ट्रा वेलोसिटी पुश कर दें और उसको अर्थ के ऑर्बिट से बाहर ले जाएं, अर्थ के ऑर्बिट से इतनी बाहर ले जाएं कि वो अर्थ और मार्स सबको क्रॉस करके किसी और ऑर्बिट में घुस जाए. तो किसी और ऑर्बिट में घुस जाए तो अर्थ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. ऐसे ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्बिट को हम ग्रेवयार्ड ऑर्बिट बोलते हैं, जहां पे सारी सैटेलाइट्स जो एक्सपायर्ड सैटेलाइट्स है, जो किसी काम की नहीं है, उन सारी सैटेलाइट्स को ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में भेज दिया जाता है. एक्स्ट्रा वेलोसिटी जो होती है वो देके हम सैटेलाइट्स को अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकाल देते हैं. सिमिलरली हम कभी कभी हम उस वेलोसिटी को कम करके उस सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में ले आते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में गिरा देते हैं और उसको डायरेक्ट करते हैं, उसको स्टीयरिंग करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके आते हैं. और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन का नाम क्या है? पॉइंट नीमो. ये पॉइंट नीमो आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. पॉइंट नीमो कौन सी जगह है? पॉइंट नीमो सदर्न पैसिफिक ओशन में, ये देखिए, ये साउथ अमेरिका है, यहां पे न्यूजीलैंड है. तो साउथ अमेरिका और न्यूजीलैंड के बीच में साउथ पैसिफिक ओशन में हम देखते हैं पॉइंट नीमो एग्जिस्ट करता है. पॉइंट नीमो किसी भी लैंड से, किसी भी जमीन से सबसे दूर एरिया है. 3000 माइल, 1500 माइल, 2600 माइल अंटार्कटिका सबसे दूर है. सबसे क्लोजेस्ट जो इसके पास जो जगह है वो 400 किलोमीटर ऊपर, इस पॉइंट नीमो से 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है. तो इसके आसपास कुछ भी नहीं है. तो सारी सैटेलाइट्स जो अर्थ के अंदर आ रही हैं उनको रीडायरेक्ट करते हैं एंड वी मेक देम फॉल इन पॉइंट नीमो. तो पॉइंट नीमो में वी सी दैट इन द ओशन, इनसाइड द ओशन देयर आर मेनी सैटेलाइट्स एंड used or expired satellites and their remains that are already there in the ocean. So these are two ways by which we can reduce the space debris कि जो सैटेलाइट का मिशन खत्म होने वाला है, या तो उसको एक्स्ट्रा वेलोसिटी देकर ऑर्बिट से बाहर निकाल दो, या उसकी वेलोसिटी कम करके मेक इट एंटर इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, burn it in the earth's atmosphere, and whatever is remaining will fall in Point Nemo in southern Pacific Ocean. European Union has also launched one more initiative which is known as Clear Space Mission. Clear Space Mission 2026 में लॉन्च होगा, और Clear Space Mission का बेस्ट एग्जांपल है ये कि एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जिसके क्लॉज हैं, जिसके पंजे हैं. ये पंजे विल टेक द स्पेस डेब्रिस को कैप्चर करेगा और फिर उसको अर्थ के पास ले आएगा या अर्थ से दूर ले जाएगा. तो जितने भी स्पेस डेब्रिस ऊपर तैर रहे हैं जो अब कंट्रोल के बाहर है, ये सैटेलाइट उनके पास जाएगी, उनको अर्थ से बाहर निकाल देगी या अर्थ के अंदर ले आके उनको जला देगी और फिर उनको पॉइंट नीमो में गिरा देगी. सो दिस इज अ मिशन
of European Union, which is going to be launched in 2026. First mission to remove a piece of space debris from orbit, planned to be launched in 2026, and the name of the mission is Clear Space 1. All over the world, globally, we also have a common forum, a common platform. The name of the platform is Interagency Space Debris Coordination Committee, IADC. Interagency Space Debris Coordination Committee 1993 होना था, where all the countries, all the member states are there for collaborating and coordinating the space activities, कि space debris कम हो और peacefully सब हर कोई participate कर पाए. So these are the different ways by which we can reduce space debris. I have also brought a practice question for you, and the practice question says, with reference to space debris, consider the following statements. First statement is, space debris encompasses both natural meteoroid and artificial orbital debris. China is the largest contributor to space junk. Project Netra is an initiative by ISRO to detect debris and hazards to Indian satellites. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2, 1, 3, 2, 3 या तीनों की तीनों करेक्ट हैं? आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए. तब तक के लिए थैंक यू.